السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان علیا منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن صدق رسولہ النبی الامین المبین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، علیک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے اجتماع میں حضرت خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو ہم نے سماعت کیا، اور آج خلیفہ چہارم حضرت سیدنا سرکار مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ مولائے کائنات کی شان میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک اور مقام پر نعت پاک کے اشعار میں امام اہل سنت فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کی۔ اس میں اس شعر میں امام اہل سنت نے حضور کے چاروں یاروں کا ذکر فرمایا۔ صدق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، عدل سے مراد حضرت عمر فاروق، کرم سے مراد حضرت عثمان غنی، اور ہمت سے مراد حضرت مولائے کائنات۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کی، اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلوار۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں تلوار کی جو نوک ہے وہ جھکی ہوئی رہتی ہے، سیدھی نہیں رہتی۔ وہ کیوں جھکی ہوئی رہتی ہے؟ تو امام اہل سنت کی محبت اور عقیدت یہ کہتی ہے کہ وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ تلوار کی نوک اس لیے جھکی ہوتی ہے کہ وہ مولا علی کی تعظیم کے لیے جھکی ہوتی ہے۔ اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بنداؤں رضا بول والے میری سرکاروں کے۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور آپ کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن۔ ابو الحسن تو ظاہر ہے کہ آپ حسنین کریمین کے والد ہیں، امام حسن کے والد ہیں، اس لیے آپ کا نام ابو الحسن آپ کی کنیت، اور ابو تراب جو آپ کی کنیت ہے، ابو تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی والا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت مولائے کائنات باہر مٹی میں آرام کر رہے تھے بغیر کرتا کے۔ تو سرکار نے جب مولا علی کو دیکھا تو پیار سے حضور نے فرمایا اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اور اسی وقت سے آپ کی کنیت وہ پڑ گئی۔ اور خود مولا علی فرماتے ہیں جب سے حضور نے مجھے ابو تراب کہا پیار سے، اس کے بعد مجھے کوئی اور لقب میرے لیے اچھا ہی نہیں لگتا، ابو تراب ہی اچھا لگتا، کیونکہ حضور نے مجھ سے محبت سے یہ کنیت عطا فرمائی۔ اور مولائے کائنات کا لقب ہے شیر خدا اور حیدر کرار۔ آپ کا نام حیدر آپ کی ماں نے رکھا تھا، اور
कर्रार ये हुजूर ने, क्योंकि आप पलट पलट कर हमला करते थे दुश्मनों का, इसलिए आपको आपका नाम, आपका लक़ब हैदर कर्रार है। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा ये हुजूर मुस्तफ़ा जार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम में चौथे नंबर में आपका मकाम अफजलियत में आता है, क्योंकि सारे सहाबा में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बाद हज़रत उमर फारूक, उनके बाद हज़रत उस्मान गनी, और उनके बाद मौलाए कायनात का मकाम है। और आप खलीफा चाहरों यानी चौथे खलीफा रहे। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान नबूवत फरमाया था, हुजूर के ऐलान नबूवत से 8 या 10 साल पहले आपकी वलादत हुई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद आप आंख नहीं खोलते थे, तो आपकी वालिदा जो थी हज़रत फातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो लेकर के देखी कि वो आंख नहीं खोल रहे हैं, और लोगों में ये बात उठ गई कि अबू तालिब के घर में एक नाबीना बच्चा पैदा हो गया है। तो जब हुजूर की बारगाह में पेश किया गया, क्योंकि हुजूर के चचा के बेटे थे हज़रत अली, तो हुजूर की बारगाह में जब हज़रत अली को दिया गया, तो हज़रत अली हुजूर के गोद में आकर के आंख खोल, और आंख खोल करके सबसे पहले ही हुजूर का चेहरे मुबारक को, ये मौलाए कायनात की शान है कि आपने सबसे पहले हुजूर ही के चेहरे को देखा। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम अबू तालिब है, और आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला, और आपकी वालिदा फातिमा बिनते असद ये पहली खातून है हाशमी घराने से जो हुजूर पर ईमान लाई, और सबसे पहली हाशमी घराने से यही खातून हिजरत की। हजरत फातिमा बिनते असद हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती थी, और जब हजरत फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, तो हुजूर खुद जनाजे में शरीक हुए, और फातिमा बिनते असद के कब्र अनवर को खोद कर हुजूर उस कब्र में लेटे रहे। फिर उसके बाद फातिमा बिनते असद को उसमें आपने दफन फरमाया, इतनी मोहब्बत करते थे। तो मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उस वक्त अरब में हालात कुछ कहत साली के ज़माना था, तो जनाब अबू तालिब ने, चूंकि बहुत सारे उनके बच्चे थे और उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, तो इसलिए उस वक्त कहत साली की वजह से बच्चों की परवरिश करना मुश्किल था, तो हर कोई आकर के एक एक बच्चे को ले जाता पालने के लिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से मशवरा किया कि हमें भी एक एक बच्चे को ले लेना चाहिए, ताकि उनके लिए जो है बोझ आसान हो, बोझ हल्का हो जाए। हुजूर जो है तैयार हुए, हजरत अब्बास हुजूर के चचा वो गए, और वो हजरत जाफर बिन अबी तालिब जो मौला अली के भाई हैं, जाफर तैयार जिनको कहा जाता है, उनको उनको हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको लेते हैं, और हुजूर से कहते हैं, या रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास से मशवरा करते हैं कि अब्बास चचा मेरे चचा अब्बास, आप मैं किस बच्चे को लूं? तो हजरत अब्बास मुस्कुराकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है आप अली ही को लेंगे, क्योंकि आप ही की परवरिश में, आप ही की तरबियत में अली की जो है वलादत हुई, और आप ही की तरबियत में, आप ही की जो है तरबियत में रहे, तो आप उन्हीं को लेंगे, उन्हीं को पसंद करेंगे। तो खुद मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा करके घुटनों के बल बैठे, और मौला अली चूंकि छोटे थे, इसलिए आप मुस्कुरा करके कहते हैं कि अली आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। तो हजरत अली गले लगे, और हुजूर उनको लेकर के आए। सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले हजरत अली इब्ने अबी तालिब, बड़े मर्दों में ईमान लाने वाले सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा, और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ईमान लाने का वाक़या खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा अभी नमाज फर्ज हुई नहीं थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से बड़ी मोहब्बत करते, नमाज की फर्जियत से पहले भी हुजूर नमाज पढ़ते थे। हुजूर और हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रहे थे, तो मौलाए कायनात की उम्र गालिबन उस वक्त 8 या 10 साल की उम्र थी जब आप ईमान लाए।
तो हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देखा तो हजरत मौलाए कायनात हुजूर से पूछे नमाज के बाद, या रसूलुल्लाह अभी आप क्या क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया कि आए अली, ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है जिसको अल्लाह ने अपने लिए पसंद फरमाया, और इसी दीन के लिए अल्लाह ने अंबिया इकराम को भेजा है। और फिर हुजूर फरमाते हैं कि अली, मैं चाहता हूँ तुम भी ईमान ला करके इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाओ। एक रात आपने तवक्कुफ किया, फिर उसके बाद दूसरे दिन आकर के हजरत मौलाए कायनात हुजूर पर ईमान लेकर के आए। और हुजूर पर ईमान लाने से पहले हजरत मौलाए कायनात कभी किसी बुत के सामने अपना सर नहीं झुकाए, नापाक बुतों से दूर ही रहे। कुछ सहाबे कराम ऐसे हैं जो जो ईमान लाने से पहले भी बुतों के सामने झुकते नहीं थे और बुतों से नफरत करते थे। उनमें से एक हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है और एक मौलाए कायनात भी है। और हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अजमत में हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं कि मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक हजरत अली को देख करके अक्सर मुस्कुराते थे। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि मैंने अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि आप मौला अली के चेहरे को देखकर इतना मुस्कुराते क्यों हैं? तो सिद्दीक अकबर का जवाब सुने। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, क्यों ना मुस्कुराऊं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला, अब मौला अली का चेहरा हर कोई देख नहीं सकते, तो फिर ये फजीलत हर किसी को कैसे हासिल होगी? तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा की एक और रिवायत है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र अली इबादतुन, अली का जिक्र भी इबादत है। गोया हम यहाँ मौला अली का जिक्र कर रहे हैं तो ये इबादत ही में शुमार है। तो आप गौर करें, यहाँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हदीस रिवायत कर रही हैं। लोग यहाँ पर एतराज करते हैं और तरह तरह की बहतान बाजियां करते हैं कि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सहाबे कराम हजरत अली से माज़अल्लाह बुग़्ज़ रखते थे। अगर बुग़्ज़ होता तो कभी ये शान वाली रिवायतें वो खुद बयान नहीं करती थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा मौला अली से बहुत अकीदत रखती थी और उसी अकीदत की बिना पर आपने सारे फजाइल हम तक, आज हमें अगर अहले बैत अतहार के फजाइल हम तक पहुंचे हैं तो वो सहाबे कराम के जरिए से। सहाबा अगर ना बताते तो हम तक ये फजाइल कहाँ से मिलते? और सहाबे कराम के फजाइल हम तक अगर पहुंचे हैं तो वो अहले बैत अतहार से। अगर अहले बैत अतहार ना बयान करते तो हमें सहाबा के फजाइल कहाँ से मिलते? ये आपस में उनकी एक दूसरे की मोहब्बत थी। आजकल के लोग जो है, कुछ लोग जो इसमें तरह तरह की बहतान बाजियां करके, झूठे झूठे इल्जामात लगा करके, इनमें नफरतें थी, इनमें ऐसा था वैसा था करके लोगों को गुमराह करते हैं। हालांकि कोई नफरतें नहीं थी। आप खुद इस रवायत में देख सकते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद मौला अली के चेहरे को देख करके मुस्कुराते और कहते भी हैं कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। इतनी मोहब्बतें आपस में थी। और खुद मौला अली भी सिद्दीक अकबर की बेहद ताजीम करते थे, बहुत ज्यादा ताजीम, और सारे सहाबा जो है आपकी बहुत ताजीम करते थे। मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हा की ताकत व कुव्वत के ताल्लुक से देखा जाए तो आपकी ताकत व कुव्वत मशहूर है। आपका नाम ही असदुल्लाह है और आपको जो है शुजाअत के आप बहुत बड़े सरदार हैं। बहादुरी में आपका मकाम बहुत आला है। वो एक मशहूर वाकया भी है खैबर का, कि खैबर के दरवाजे को उठा करके मौला कायनात ने फेंक दिया था। कि जंग खैबर का मामला था, कई दिन जंग लड़ी जा रही थी लेकिन फतेह हासिल नहीं हो रही थी। तो हुजूर ने एक दिन फरमाया कि हजरत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कल मैं एक शख्स को झंडा दूंगा, वो खैबर के किले को फतेह करेगा। अब हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसकी जो है निशानदही कर दे, वो कौन होगा? तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अब हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक और निशानी बता दे ताकि और मालूमात हो जाए। कहा, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो इस तरीके से शान बयान की मौलाए कायनात। और फिर जब दूसरे दिनों सहाबा सब जो है सोच में थे कि आखिर कौन खुश नसीब है जिससे अल्लाह रसूल खुद मोहब्बत करते हैं। तो दूसरे दिन जब हुआ तो सब मौजूद थे, लेकिन मौला अली को उस वक्त आशुब चश्म की जो है कुछ तकलीफ थी, आंख में कुछ तकलीफ थी, जिसकी वजह से मौला अली हाजिर नहीं हो पाए। हुजूर ने फरमाया कि अली कहाँ है? तो मौलाए कायनात जब जो है को ये बात पहुंचाई गई कि हुजूर बुला रहे हैं, तो मौलाए कायनात आंख पर
हाथ रखते हुए तशरीफ लाए और हुजूर से फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरे आंख में तकलीफ है, आशुब चश्म की का मर्ज लायक हुआ है, आंख में मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तो हुजूर ने फरमाया कि अली, अपने हाथों को नीचे करो, और हुजूर ने अपने लुआब दहन यानी थूक मुबारक को निकाल करके हुजूर ने मौला अली की आंखों में लगाया। मौला अली फरमाते हैं, जैसे ही हुजूर ने अपना लुआब दहन मेरे आंख में लगाया, पहले से ज्यादा मुझे अच्छा दिखने लगा और कभी वो तकलीफ मुझे नहीं। अब गौर करें, हुजूर ने कोई दवाई नहीं मंगाई, बल्कि हुजूर जब मौजूद हैं तो किसी दवाई की भी कोई जरूरत नहीं है। हुजूर के तबरुकात ही ऐसे हैं कि हुजूर के तबरुकात की बरकत से अल्लाह ताला बीमारों को शिफा नसीब करता है। हुजूर के थूक मुबारक में अल्लाह ने वो अजीम तासीर रखी कि उसकी बरकत से हजरत मौलाए कायनात की आंख सही हो गई। अब हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है, उनके हाथ में हुजूर ने झंडा दिया और झंडा देकर के भेजा। एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम मरहब था, और इतना बड़ा पहलवान कि अगर वो ऊंट की चमड़ी पर खड़ा हो जाता, मजबूत चमड़ी पर, और आसपास से सारे लोग मिलकर के खींचते तो वो चमड़ी फट जाती, लेकिन वो पहलवान अपने जगह से हिलता नहीं था। 100 आदमियों की ताकत के बराबर, 40 आदमियों की ताकत के बराबर उसकी ताकत थी, इतना बड़ा पहलवान। मौला अली के मुकाबले में आया और आने के बाद उसने मौला अली को ललकारा, कहा कि अली, जानते हो मैं कौन हूँ? तो मौला कायनात ने फरमाया कि तू कौन है इससे मुझे कोई फर्क नहीं, तू जानता है मैं कौन हूँ, तू जानता है मैं कौन हूँ। अना असदुल्लाहि व रसूलिही, मैं तो अल्लाह का भी शेर हूँ, अल्लाह के रसूल का भी शेर हूँ। और फिर उसके बाद मौला कायनात की जब ये बात सुनकर के वो आया लड़ने के लिए, मौला अली ने इतने बड़े पहलवान को जुल्फिकार हैदरी हाथ में लेकर के एक वार ही किया। सिर्फ एक वार में उसकी गर्दन भी कट गई, उसका जिस्म भी कट गया, हत्ता कि जिस घोड़े पर सवार था वो घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए एक वार में। ये ताकत और कुव्वत है मौला कायनात की। और फिर उसके बाद वो दरवाजा, मौरिखीन ने कहा कि 150 मन का दरवाजा था, 40 गज लंबा, 40 गज चौड़ा। इतने मन का दरवाजा, कई लोग भी मिलकर के उसको उठा नहीं सकते थे। इतने मन का दरवाजा, मौला कायनात सीधे हाथ में तलवार लिए और तलवार लेकर के अपने बाएं हाथ में मौला कायनात ने उस दरवाजे को उखाड़ा, और उखाड़ करके जो है उसको ढाल बना करके लड़ते रहे, और आखिर में उसे बहुत दूर तक फेंक दिया एक हाथ से, बाएं हाथ से। मौला कायनात इतने वजनदार जो है उस दरवाजे को निकाल करके फेंक दिया। इसीलिए जो है किसी आशिक रसूल ने एक बहुत ही प्यारा शेर कहा, वो कहते हैं कि जंजीर हिलती रही और दर कांपता रहा, जंजीर हिलती रही और दर कांपता रहा, अली का नाम सुनकर आज भी खैबर काम जाता है, अली का नाम सुनकर आज भी खैबर काम जाता है। इस तरीके से। और फिर सहाबे कराम खुद फरमाते हैं कि बाद में उस दरवाजे को 80 लोग मिलकर के उठाने की कोशिश की, वो दरवाजा उठता ही नहीं था। इतना भारी दरवाजा मौला अली ने अपने एक बाएं हाथ से उठाकर फेंक दिया। चंद सालों के बाद जब मौला अली की खिलाफत का दौर आया, तो एक नौजवान को जब मौला अली के बारे में पता चला, इस मामले के बारे में, तो वो नौजवान आया मौला अली से मुलाकात करने के लिए। तो देखा कि मौला कायनात अखरोट तोड़ रहे हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। तो वो नौजवान देख करके मुस्कुराने हंसने लगा कि ये अखरोट ही नहीं तोड़ रहे, तो इन्होंने खैबर का दरवाजा कैसे उखाड़ फेंक दिया। तो मौला कायनात ने उस नौजवान को देख करके कहा कि तुम क्यों हंसते हो? तो वो खामोश रहा। मौला अली ने फरमाया कि मैं ये बता दूं तुम क्यों हंस रहे हो? तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं अखरोट नहीं तोड़ रहा हूँ, तो ये दरवाजा कहाँ से उठा करके उन्होंने उखाड़ दिया। तो सुनो, वो जो ताकत थी ना, वो ये अखरोट तोड़ना, ये मेरी ताकत है, और वो जो मैंने दरवाजा, खैबर का दरवाजा उठा करके फेंका, वो मेरी ईमानी ताकत और रूहानी ताकत है, ईमानी ताकत और रूहानी ताकत है। इससे मालूम हुआ कि ईमान में बहुत बड़ी ताकत है। आज भी अगर ईमान किसी का मजबूत हो तो अल्लाह ताला उस ईमान में बहुत बड़ी ताकत अता फरमाता है। इसलिए कि जिस्मानी ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन ईमानी और रूहानी ताकत कभी खत्म होने वाली नहीं है। और मौलाए, आप खुद देखिए, मौलाए कायनात बाएं हाथ से वो दरवाजा उठाकर फेंकते हैं, सीधे हाथ से क्यों नहीं? बाएं हाथ से इसलिए कि दिल बाएं तरफ ही होता है, और जो रूहानी और ईमानी ताकत होती है वो दिल से गुजरती है। और मौलाए कायनात बाएं हाथ ही से दरवाजे को उठा करके फेंका। इस कदर मौलाए कायनात की ताकत और कुव्वत है। और मौलाए कायनात इल्म से इतना, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अना अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबूहा, कि मैं हिकमत का दरवाजा हूँ, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसके दरवाजा है। मैं इल्म का शहर, ये भी हदीस पाक है, मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजे हैं। तो मौलाए कायनात
एक मर्तबा खुद फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे यमन का काजी बना करके हुजूर भेज रहे थे, तो मैंने हुजूर से फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं कम उम्र का आदमी और ना तजुर्बा कार, और मुझे जो है कज़ा के बारे में कुछ मालूमात भी नहीं, तो मैं कैसे फैसला करूंगा काजी बन के। तो मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं, जब मैंने सवाल किया तो हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ रखा और हाथ रख करके दुआ की कि या अल्लाह, अली के दिल को हिदायत के नूर से रोशन फरमा और अली की ज़बान को इस्तिक़लाल अता फरमा। तो मौला अली फरमाते हैं, जब से हुजूर ने ये दुआ दी है उसके बाद से कभी भी कोई फैसला करने में मुझे कोई शुबा नहीं, इस कदर आपका इल्म था। और खुद सहाबे कराम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है आपसे कई मसाइल पूछते और इतने बेहतरीन अंदाज में मौलाए कायनात जवाब देते थे कि फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है बगैर मौला अली से मशवरा किए कोई काम आगे बढ़ाते नहीं थे। हर मामले में वो किसी से मशवरा ले या ना ले, लेकिन मौला अली से वो जरूर मशवरा लेते थे। और खुद ही फरमाते हैं कि अली की मौजूदगी में कोई और फतवा ना दिया करे, अली मौजूद है तो अली ही फतवा देंगे। इतना इस कदर फारूक आजम भी जो है मौलाए कायनात से मोहब्बत करते थे। और मौला अली खुद फरमाते हैं एक शेर में कि मैं लोगों को अल्लाह ने माल दिया और मुझे अल्लाह ने इल्म दिया, अल्लाह की तकसीम पर मैं राजी हूँ, इसलिए कि जो खूबसूरती है वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन इल्म वो खूबसूरती है कि ये हमेशा बाकी है। और इल्म को खुद मौला अली फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल किए बगैर तुम अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की पहचान नहीं कर सकते। और मौलाए कायनात को अल्लाह और उसके रसूल पर इतना यकीन था, इतना यकीन कि हुजूर के हर हर फरमान पर यकीन। एक मरतबा मौलाए कायनात बीमार हुए, तो बीमार होने के बाद सहाबे कराम जो है इयादत के लिए आए, तो सहाबा आकर के रोने लगे। मौलाए कायनात ने फरमाया कि आप क्यों रोते हैं? तो सहाबा ने कहा कि ए अली, आप इतने अजीम सहाबी मेरे नबी के, अगर आप ही दुनिया से तशरीफ ले जाएं तो फिर कैसे होगा? तो मौलाए कायनात मुस्कुरा कर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे इस बीमारी से मौत नहीं आने वाली। कहा क्यों? इसलिए कि खुद मौला अली फरमाते हैं, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया है कि अली, तुम्हें उस वक्त शहादत मिलेगी जब तुम्हें उस वक्त मौत आएगी जब तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, और अभी मेरी दाढ़ी खून से रंगीन नहीं हुई है, इसका मतलब इस बीमारी में मुझे मौत आने वाली नहीं, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमा दिया। ऐसे हिजरत की शब भी जब मौला अली को हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है अपने बिस्तर पर सुला करके गए थे और मौला अली से फरमाया था कि अली, कल सुबह हो जाए तो तुम जो है गनीमत का माल लेकर के तुम भी हिजरत करके आ जाना। तो मौला अली उस रात सो गए। चंद दिनों के बाद सहाबा ने पूछा कि आपको दुश्मन जो है दरवाजे पर थे, कभी भी आकर हमला कर सकते थे, आप इतनी सुकून से, इतने इत्मीनान से कैसे सो गए बिस्तर पर? हालांकि जब ये मालूम हो कि दुश्मनों का जो है बाहर दुश्मनों का काफिला है, कभी भी आकर हमला कर सकता था, आदमी को नींद नहीं लगती, आप इतने सुकून से कैसे सो गए? तो मौला अली फरमाते हैं कि मुझे जो है रसूलुल्लाह के फरमान पर यकीन था कि मुझे मुझे बात दिल में बैठ गई थी कि मुझे अली को कभी भी मौत आ सकती है, लेकिन आज की रात मौत आने वाली नहीं। क्यों? इसलिए कि रसूल ने फरमा दिया, सुबह उठ कर के तुम्हें गनीमत का माल लेकर के मदीना आना, इसका मतलब आज की रात मुझे मौत नहीं आने वाली, मैं सुबह जरूर उठूंगा। ये रसूल के फरमान पर मुझे यकीन है। अब गौर करें कि अगर हमें फजर में उठने की बात आए तो हमारे दिलों में ये बात आती है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला रोजी में बरकत देगा। सरकार ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन हमारे दिलों में शैतानी वसवसे डालता है कि नमाज में उठेंगे तो हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, नमाज में उठेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, नमाज में उठेंगे तो सर में दर्द आ जाएगा। यानी अल्लाह रसूल के फरमान पर इतना यकीन नहीं है, बल्कि अपने दिल में जो शैतान बात डाल रहा है उस पर यकीन आ गया। लेकिन मौला अली के फरमान, मौला अली से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज़बानी दावा हो, बल्कि आपने जो अल्लाह रसूल पर जो यकीन रखा था, वो यकीन हमें सिखाता है कि कुछ भी हो जाए, जिस काम को अल्लाह और उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया उसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि उसमें फायदा ही फायदा, उसमें फायदा ही फायदा है। और मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो फर्ज तुम पर लाजिम किए हैं उनको हरगिज जाया मत करो, फर्ज पर। और मौला अली नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, नमाज से, कि खुद ही फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला अगर मुझसे कहे कि अली जन्नत में जाओगे या नमाज पढ़ोगे, तो मैं रब की बारगाह में कहूंगा कि मौला मैं नमाज पढ़ूंगा, इसलिए कि नमाज में जो मजा है वो जन्नत में मजा नहीं है। और बल्कि मैं रब की बारगाह में कहूंगा मौला तू जन्नत में दाखिल फरमा, लेकिन मुझे वहां नमाज की मोहलत भी दे, नमाज पढ़ने की मुझे सहूलत भी वहां पर अता फरमा। इस कदर मोहब्बत करते थे। लेकिन ये बात याद रखें कि मौला अली से मोहब्बत करना है उसी रोशनी में जिसको रसूल जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह ने फरमाया, उसी फरमाने कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें मौला अली से मोहब्बत करनी।
मौला अली की मोहब्बत में किसी सहाबी को माज़अल्लाह गाली देना, किसी सहाबी के शान में गुस्ताखी करना, किसी सहाबे कराम को जो है उनके शान में लान तान करना, ये मोहब्बत मौला अली की मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है जो सहाबे कराम को गालियां दे। सहाबे कराम की शान बयान करते वक्त अहले बैत को घटाना, अहले बैत की शान बयान करते वक्त सहाबा को घटाना, ये अहले सुन्नत नहीं, बल्कि अहले सुन्नत के इमाम ने कह दिया कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमें सहाबा से भी मोहब्बत करनी है, हमें अहले बैत अतार से भी मोहब्बत करनी है। सहाबा से इसलिए कि वो नबी के घर वाले हैं, सहाबा से इसलिए कि वो नबी के साथी हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले, और अहले बैत अतार से इसलिए मोहब्बत करनी क्योंकि वो नबी के घर वाले हैं और नबी से उनकी निस्बत है, दोनों से निस्बत है। जिन जिन चीजों से रसूलुल्लाह की निस्बत हो गई उन चीजों की मोहब्बत हम पर फर्ज हो गई, हम पर फर्ज हो गई। और खुद मौलाए कायनात इमाम अहमद इब्न हंबल ने रिवायत बयान किया कि मौलाए कायनात को हुजूर ने फरमाया कि आए अली, तुम्हारी मिसाल तुम्हारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दो गिरोह गुमराह हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दो गिरोह गुमराह हो गए। ये गिरोह तो ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते करते इतनी मोहब्बत किया कि वो अल्लाह का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम को बना दिया, वो भी गुमराह है। और ये गिरोह तो ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करने लगे, वो भी गुमराह। और ऐसे ही अली, तुम्हारे बारे में भी दो किस्म के लोग गुमराह होंगे। तो मौला अली से हुजूर ने फरमाया कि एक वो गिरोह जो तुमसे मोहब्बत के दावे में इतना तुम्हारी शान में गुलू करेंगे, इतना गुलू करेंगे, वो भी गुमराह होंगे। गुलू से मुराद क्या कि मौला अली को खुदा तक खुदा बना देना, या नबियों से अफजल बना देना, या हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से अफजल मौला अली को कह देना, ये सब जो है मौला अली के शान में जो है उनकी मौला अली की मोहब्बत में आकर के हुलू करना। हुजूर फरमाते हैं कि जो तुम्हारी मोहब्बत में हुलू करे और बढ़ चढ़कर कुछ भी गलत कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो है तुमसे तुम्हारी शान को बयान करे और तुम्हारी शान में तुम्हारी मोहब्बत में आकर के हुलू करे, वो भी गुमराह है। और एक ग्रोह वो है जो तुमसे दुश्मनी करेगा, वो भी गुमराह है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अहले सुन्नत वल जमात जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौलाए कायनात से जो मोहब्बत करते हैं, यही ग्रोह हक पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम मौला अली से वैसी ही मोहब्बत करते हैं जैसे हुजूर ने हमें वो मोहब्बत करने का हुक्म दिया। हुजूर ने हमें मोहब्बत करने का हुक्म दिया, सहाबा ने जो मोहब्बत किया उसी अंदाज में मौला अली से हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों में सहाबे कराम और अहले बैत अतार की सच्ची अकीदत मोहब्बत पैदा फरमाए। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मौला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मौला करीम या अल्लाह इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह मौला कायनात की विलादत बासआदत की मुनासिबत से यहाँ पर हम सब ने मौला कायनात की बारगाह में खराज अकीदत पेश की। मौला कहने सुनने में जो भी गलतियाँ खामियाँ हुई, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमा कर मौला इस खराज अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला कायनात से सच्ची मोहब्बत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमा। इस दौर में जो भी गुमराहियत है, अल्लाह इन गुमराहियत से इन सब बच्चों को, हम सब के घर वालों को, तमाम ईमान वालों की हिफाजत फरमा। सहाबा इकराम से भी, अहले बैत अतार से भी खूब अकीदत मोहब्बत रखने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मौला हम सब के दिलों में, या अल्लाह हम सबको मरते दम तक अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत पर सख्ती के साथ कायम व दायम रहने की तौफीक नसीब फरमा। मौलाए कायनात के सदक़े मौला हम सबका खातिमा बिल खैर फरमा। मौलाए कायनात के सदक़े हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहां की सारी कामयाबियों से मालामाल फरमा। मौलाए कायनात के सदक़े मौला हमारे वालिदैन के सायों को मौला मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती, ईमान और आफियत के साथ हम सब पर लंबे अरसे तक कादिर कायम व दायम अता फरमा। हमारे घर वालों को मौला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। उनके सायों को हम पर कादिर कायम व दायम सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान और आफियत के साथ मौला हम सब पर कादिर कायम व दायम अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मौला हम सब पर खुसूसी नज़र रहमत फरमा। जिन्होंने जो भी दुआओं की दरख्वास्त की, मौला सबकी नेक दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह एक बच्चा है अहमद रजा नाम का, या अल्लाह उस बच्चे को, या अल्लाह ब्रेन कैंसर हुआ है, उस बच्चे को मुकम्मल शिफा नसीब फरमा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सदक़े मौला उस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमा। उस बच्चे के लिए जो भी दवाइयों का इस्तेमाल और उसमें शिफा की तासीर पैदा फरमा। या अल्लाह उस बच्चे को मुकम्मल शिफा नसीब फरमा। जो भी बीमार है मौला सबको मौलाए कायनात के सदक़े में शिफाए कुल्ली, शिफाए ताम्मा नसीब फरमा।
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. جب نکالے السلام علیکم.